আসানসোল পৌর নিগমে বোর্ড মিটিং অনুষ্ঠিত হলো। বুধবার এই বোর্ড মিটিংয়ে আসানসোল পৌর নিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি সহ কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বৈঠকে উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৈঠক শেষে আসানসোল পৌর নিগমের চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি বলেন, এই বৈঠকে উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পানীয় জল ও আলো লাগানো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বোর্ড মিটিং ছিল। পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন কয়েকজন মানুষ, বিশিষ্ট মানুষ মারা গেছেন। তাদের স্মৃতির প্রতি যে নীরবতার মধ্যেখানে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে এবং তারপর বিভিন্ন আলোচনা ছিল, ডেভেলপমেন্ট, ইলেকট্রিক, বিসিটি ওয়ার্কারদের পেমেন্ট, ঈদে যাতে সুন্দরভাবে জল পরিবেশন করা যায়, লাইটটা যেন সুন্দর থাকে। আমরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে চিঠি করতে বললাম আজকে, যেন সুন্দরভাবে লাইটটা দেয়। এই প্রচণ্ড গরম চলছে, কিছু কিছু জায়গায় অসুবিধাও তৈরি হচ্ছে, আর নদীতে জল নেই। আমরা ডিবিসিকেও বলেছি জল ছাড়ার জন্য, এবং ডিবিসিকে আমরা কয়েকদিন আগে চিঠিও করেছিলাম যে আপনার এই জলটা ওদিকে চলে যাচ্ছে, কতটা জল দেবেন, কতটা গরমে আমাদের যে গরম পড়বে, আপনারা কতটা জল আমাদের সরবরাহ করবেন আসানসোলের মানুষের সেই জলে অসুবিধা যাতে না হয়, সেই জন্য ডিবিসিকেও চিঠি করা হয়েছিল যে বর্ষার আগে পর্যন্ত আপনারা দেখবেন আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন পরব রয়েছে, সেই পরবগুলোর কথা মনে করে। আর এইসব আলোচনা হলো। বিভিন্ন কাউন্সিলর, তারপর পেনশন যাদের আধার এবং লিঙ্ক হয়নি ব্যাংকের সঙ্গে, বিভিন্ন রকমভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রকমভাবে অসুবিধা তৈরি করছে, সেইগুলো দূর করার জন্য আমরা লোক মারফত তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা আধার এবং পোস্ট অফিসের সঙ্গে বা ব্যাংকের বইয়ের সঙ্গে আমরা সেই লিঙ্কগুলোকে আমরা একত্রিত করার জন্য আমরা সেটা একটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং ইলেকট্রিক মেনটেন্যান্সের যে ওয়ার্ক হচ্ছে সেগুলো আমরা যাতে তাড়াতাড়ি ভালোভাবে করে এবং ঈদের সময় যেন কোনো মানুষেরই কোনো অসুবিধা না হয় সেটা দেখার জন্য সব ব্যবস্থা করেছে। পুলিশ প্রশাসনকেও আমাদের তরফ থেকে আজকে অনুরোধ করা হবে এবং পুলিশ প্রশাসনও চেষ্টা করছেন যাতে সুন্দরভাবে সবাই একত্রিতভাবে সম্প্রীতির মধ্যখানে ঈদ পরবটাকে পালন করে। আজকে মেয়র সাহেব ছিলেন না, ওনার বাড়িতে একটা অঘটন ঘটে গেছে, সেই ব্যাপারে উনি ছিলেন না, কিন্তু আমাদের ডেপুটি মেয়ররা ছিলেন, এমআইসিরা ছিলেন, তাদের সমস্ত আলোচনার মধ্যেখান দিয়েই হয়েছে। কাউন্সিলরদের বেতনের কথা বলেছে, তাদের যে রেমুনারেশনটা দেওয়া হয় সেই রেমুনারেশনটা তারা বাড়াবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এই রেমুনারেশনটা সম্পূर्ण ओन फंड থেকে देवा। एक की जो 4200 का स्ट्रीट लाइट है चलता नहीं है, वो जेम पोर्टल के माध्यम से दूसरी गवर्नमेंट की कंपनियां ईसीएल, कोल इंडिया, सेल खरीद रहा 1200 रुपया में डायरेक्ट कंपनी से। जेम पोर्टल से आप लाइट खरीदिए, अगर सारा साल में जहां 4 करोड़ का लाइट खरीदिएगा 1 करोड़ में आपका काम हो जाएगा। दूसरा मुद्दा हमने उठाया कि किसी भी वार्ड में काम हो रहा है, काउंसलर को कुछ नहीं पता, बिल पास हो गया, कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी पैसा अपना पॉकेट में डाल लिया और काम बाद में देखता कि ये नाला बोला वो नाला कर दिया। तो इसलिए हमने बार बार कहा, पूछूदा ने भी कहा कि काउंसलर के साइन के बिना एक बिल ना पास हो। कौन सा वार्ड में ऐसा हुआ है? ये वार्ड में, हर वार्ड में चल रहा है। अरे भाई अभी जैसे एक दो हमारा वार्ड में समझ लीजिए हुआ है, हमारा बिना नॉलेज का बिल पास हो गया। और अभी काम क्या हुआ, 1 साल में तो जनरल फंड है नहीं, तो काम क्या होगा, क्योंकि अब शुरुआत होगा। मेयर साहब जिस तरह से लगे हुए हैं काम होगा। आपका बोलने का मतलब है कि बिना काउंसलर के इजाजत से कोई बिल ना पास हो एजेंसी का। अब मेरा मानने का मतलब है कि जो भी लाइट वगैरह खरीदिएगा आप, मेरे वार्ड में 1,41 नंबर में अगर ये पैसा आ जाएगा तो सोना का रोड बन जाएगा, मगर ये लोग सुनेंगे तब ना, सुनना पड़ेगा। एक दूसरा बात हमने कहा कि जो बोर्ड मीटिंग में आप लोग रेजुलेशन पास किए थे कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग होता है उसका प्लान काउंसलर को जनाना होगा, किंतु आज 6 महीना हो गया, कोई भी नहीं बोलता है, कोई इंजीनियर नहीं बोलता है, जो बिल्डिंग बनाता है वो भी नहीं बोलता है, और इंजीनियर लोग नींद का गोली खा के घूमता रहता है। तो क्या कॉरपोरेशन, मेयर साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, यही मुद्दा है। और तीसरा कि स्टाफ का सैलरी और हम लोग का सैलरी, चलिए बहुत आदमी अपना अपना बिजनेस करता, काउंसलरों का चलता, किंतु जो मेरी माँ बहन बेटी लोग जो बाहर से, जमुरिया से, रानीगंज से, गांव से आता, उनका 7,000 में क्या होगा अपना परिवार छोड़ के, कम से कम उनका सैलरी
दुर्गापुर कॉरपोरेशन या कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लेवल मौजूद नहीं थे। पर्सनल उनका एक मसला था, इसलिए वो मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। हम लोगों का मसला ये रहा कि हम लोग अपने इलाके में, रेल पार के इलाके में, ख़ास करके रमज़ान और ईद की वजह कर पानी का जो किल्लत है, उस सिलसिले में हम लोगों ने कहा कि भाई पानी का बेतहाशा किल्लत है, लोग परेशान हैं। अगर ऐसे हाल में अगर कोई हल नहीं निकला तो बहुत आगे परेशानी होगी। तो चेयरमैन साहब ने यकीन दहानी कराया है कि हम लोग मैंने देख रहे हैं। और बकिया जो बात कहनी थी हम लोगों, तो हम लोग कुछ नहीं कह सके चूँकि मेयर साहब थे नहीं। मेयर साहब के मौजूदगी में ही अगर कुछ कहा जाए तो कुछ अमल किया जा सकता है या कुछ हल निकल आएगा। तो इसलिए चूँकि मेयर साहब नहीं थे तो इसलिए हम लोग और ज़्यादा कोई बात नहीं रखे। अगली मीटिंग के लिए हम लोग उसको पानी के साथ साथ हम लोग लाइट के बारे में बातचीत हुआ। जो सिमको कंपनी के बारे में काउंसलर का आधा नहीं जानता है। तो जब पोल से लाइट खुल के चला जाता है हेलोजन ना 3-3 4-4 महीना नहीं लगता है, तो वो पब्लिक काउंसलर को बोलता है कि लाइट जो खुल के गया वो कहाँ नहीं लगा। तो ये सिमको समझा देने से नहीं होगा। उसको तत्काल जो खुल करके लाइट जाता है, पोल में अंधेरा होता है तो काउंसलर को बोलता है, वो करना कब पड़ेगा। दूसरा जो पेंसिल हर वार्ड में है जिसको मिल रहा है 1000 रुपये करके, हैंडीकेप, बेवा और ओल्ड एज, उसको बहुत सा आता पता एड्रेस नहीं, मोबाइल नंबर नहीं, बहुत परेशानी हो रहा है। बोल रहा बंद कर देंगे, तो वो बंद करना नहीं होगा। जिन लोगों को 1-2 महीने नहीं मिलेगा बुला करके फिर चालू करके कर देना होगा। उससे क्या होगा, वो काउंसलर लोग के पास में जाएगा, क्योंकि वो लोग तो यहाँ आएगा नहीं, कमिश्नर साहब कॉर्पोरेशन आएंगे नहीं। तो ये सब जो है आम आदमी बहुत मुश्किल से 1000 रुपया अगर उसको मिल रहा है, तो कोई दवा ब्यूरो में उसका काम लग जा रहा है, उसका बुढ़ापा का बहुत 1000 रुपये बहुत माने रखता है। तो हम लोग बोले उसको टाइम दे करके उन लोगों को कैम्प कर करके उसी वार्ड में जैसे ये लोग लेंगे, हम लोग राय दिया, चाहे माइसी मीटिंग में हो ये हो करके किया जाए, ताकि इससे आम आदमी को 1000 रुपया कटे ना। ये हम लोग का मेन मकसद हुआ। 3 चीज़ पर बातचीत हुआ।